Euler's form. It is called Euler's form. Okay, and it goes like this. So Euler's form says, "Isko." I think it is pronounced Euler's. Okay, you can check out the pronunciation. Okay, I'm not that into pronunciation, so whatever it is. Listen. So your Euler form क्या होगा है? We have seen that we have seen this form before. We have seen this form, which is r cos theta plus iota sin theta, right? And we did some problems of this. Devika, keep your video on, okay? Keep your video on. What is Euler form? Euler form is written as e power I theta. E power I theta, okay? Now when you say e power I theta, you mean, sorry, r e power I theta. This is equal to r multiplied by e power I theta. So the power I theta is only on the e, okay? Also, this is not a, this I theta is not a multiplication, okay? It is not a multiplication. You will not write it is not equal to e raised to I and then whole power theta. ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना? E raised to I theta, e raised to I theta नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं है, हाँ हाँ ऐसा नहीं है, okay? Fine. For example, तब देखो इसका मतलब क्या होता है. Suppose if I write 2 plus 2i, okay, this complex number. Fine. इसका r कितना है? जल्दी बोलो बच्चों, r कितना है इसका? 2 बट नहीं, 2 नहीं, r 2 नहीं, 2 root 2 2 रूट 2. और थीटा कितना है? 45 5/4. ठीक, ये सबको समझ में आ गया? नंबर 1, यस और नो? क्या? ओ I didn't understand. वलीचा, देखो बेटा, r was the distance of the complex number from the 0, 0. Yeah. एंड कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है 2, 2 पे, तो ये डिस्टेंस, एरो के डिस्टेंस को r बोलते हैं, Okay. थीटा बोलते हैं, ठीक है? Yeah. तो इसका आंसर बताना. 2 minus 2i, r कितना है? That only. It'll be 2 root 2 only, no? या 2 रूट 2 ओनली. एंड थीटा कितना है? 45. इधर है ना, तो कितना एंगल है? Oh, minus 45. गुड, minus 45. थर्ड, minus 2 plus 2i, r कितना है? Same 2. सेम मत बोलना, सेम लिख दो यहाँ पे. 2 root 2. थीटा कितना है? 5/4. नहीं, नो. Why will it be minus 5/4? एक इस पॉजिटिव एक्स से नापते हैं, कहाँ पे होगा वेक्टर? ऐसा होगा ना, ये -2 + 2i. तो कितना आंसर है? $135. 135, which is 3π/4, okay? Yeah. और फोर्थ, -2 - 2i, r is 2 root 2 and theta is -3π/4. So how do we write? So see this complex number, the first complex number is nothing but 2 root 2 e raised to I pi/4, okay? 2 root 2 e raised to I pi/4, and it is written 2 root 2 e raised to minus I pi/4, or I times minus pi/4, okay? This is written 2 root 2 e raised to I 3 pi/4, okay? And the last one is written 2 root 2 e times I times of -3 pi/4. Okay, fine. E raised to I theta, very simple. R e raised to I theta, fine.
हेलो, ये सर नो लिख लिया ये। अभी अभी ऐसे करो, ये इसका बताओ मुझे, ये इतना हो गया, आगे बढ़ू। देविका अंडरस्टूड टिल हेयर? Not quite, sir, but like yeah, somewhat. Okay, we'll do more examples. Example 5. What about 1 plus 0i? 1 plus 0i, इसका r कितना है? चलो आंसर बताओ। फर्स्ट, फिफ्थ का आंसर r इज इक्वल टू, which coordinate is this, which endpoint is this? R is equal to 1. क्या 1 होएगा ना 1. कोऑर्डिनेट बोला? कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट में दो होते हैं। कोऑर्डिनेट 1,0. 1,0, वेरी गुड। तो r कितना है? R1. 1। थीटा कितना है? थीटा 0 डिग्री. तो ये क्या है? 1 इंटू ई रेस टू आई जीरो, राइट? अंडरस्टूड, ठीक है। इसका इसका कोऑर्डिनेट कितना है सची? इसका एंड पॉइंट कितना है 0 प्लस 1 आई का? 0,1. तो इसका r कितना है? 0. नहीं, r मतलब डिस्टेंस फ्रॉम 0,0। Yeah, 1. 0,1 का 0,0 डिस्टेंस कितना है? 1. 1। और थीटा कितना है? 0. हाँ 0. देविका, व्हाट इज थीटा हियर? Sir, 0. देखो 0,1 कहाँ होता है? यहाँ होता है ना, ये होता है 0,1। Okay. तो ये एंगल कितना है फ्रॉम द मेजर प्लस एक्स करते हैं ना? 90, 90, 90. 90 degrees. 5/2। Seventh is same, it is same as sixth. Okay, so it is r is 1, theta is 5/2. So by the way, this is e raised to I pi by 2. Okay, the number I is also written as e raised to I pi by 2. This is very important. The I is also written as e raised to I pi by 2. Okay. Sir, I'm not understanding anything.
Okay, see. Uh, you were there last class. No. Okay. Last class, what we did was there is a complex number. You were there in the last class before that. Yeah. If you have a complex number, let's say 2 comma 2, which ends at which starts at, so it is start ending at 2 comma 2, it will be called 2 plus 2i. Okay. Do you know this? No. Okay. And you will not understand anything in this. You will leave this lecture, okay? Okay, sir. Now see minus I का बस समझ में आया r is 1 और theta is कितना? थीटा कितना है माइनस आई का? जल्दी जल्दी आंसर बोलो प्लीज. pi by 2. माइनस पाई बाई 2 माइनस आई का बोल रहा हूँ. माइनस 1 का r is 1 थीटा इज इक्वल टू Pi. पाई ना, इसलिए माइनस 1 को लिखते हैं e रेस टू आई पाई, ऐसे लिखते हैं. और तुमने कोई भी देखा होगा इसको यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं और फिर बोलते हैं e रेस टू आई पाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और फिर ऐसे इस कूल इक्वेशन को टी शर्ट पे लिख देते हैं. तुमने देखा होगा शायद किसी किसी टी शर्ट पे लिखा रहता है. ठीक है. ये इतना ऐसा अजीब सा इक्वेशन इसलिए है क्योंकि ये जो e है ना ये इरेशनल नंबर है. ठीक है. ई इरेशनल नंबर होता है, आई जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, पाई अगेन इरेशनल नंबर होता है, वन जो होता है रैशनल होता है, और सब ऐड करके 0 हो जाता है. ठीक है. ओके, सो दिस इज अ वेरी काइंड ऑफ इन अजीब सा इक्वेशन है, बट ठीक है. 4 का आंसर होगा 4 ई रेस टू आई 0. ठीक है. माइनस 8 का आंसर होगा 8 ई रेस टू आई कितना है बेटा? 0. पाई मैन पाई. नेगेटिव नंबर का थीटा पाई है. 39 का आंसर क्या होगा? Thirteen. Pi by 2. e raised to I pi by 2. ठीक, करेक्ट. 1 plus root 3 I. R will be 2. Hmm. Theta will be, I don't know, अरे दिख रहा है tan थीटा कितना है? tan थीटा कितना है? 1 by root 3. नहीं, ठीक से Root देख. 3. हाँ तो कितना है tan? फिर ठीक है. 60. So pi by 3. इसका Same. 2e. ना ना No, 1 ei pi to the power pi by 6. Pi by 3. e रेस टू आई पाई बाई 3. ठीक है. और ये बाहर 1 है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट नंबर है. ठीक है. इसका With 1 e raised to plus root 361. So for this question, when we draw Cartesian plane and we put this,
Will the triangle not look like this? फिर से बोलना. When we put this on Cartesian plane, how does the triangle look? Which one? 14, 15, 16. 16, 15, 16. 16. 16, 16. So I will put both 15 and 16, okay? Okay. 15 was minus 1 plus root 3 by 2. Hmm. So it is minus 1 by 2 plus root 3 by 2. So it will be like this. And Oh, this okay. will be 60, right? You understand? And this length will be 1. Hello? Yeah. Right? And when you put minus 1 minus root 3 by minus 1 minus root 3 by 2, sorry, minus 1 plus this is this is 16th, okay? Minus 1 by this 16th number, okay? 15th number is minus 1 plus root 3 by 2. It is like this. This is 15th number. And again, its length is 1, but this angle is 60, right? For this 15th one, r is 1, theta is pi by 3, okay? But for the 16th one, r is 1, theta is 2 pi by 3. 2 pi by 3. Yeah. Because the angle is calculated like this, right? The angle is calculated like this, okay? Then you have a very good number, which is another number which is like this, and it is minus 1 minus root 3 by 2, and in complex number it is e raised to I minus 2 pi by 3, okay? Because you know the angle is like this, right? Remember that you know there is one important thing, which is that these complex numbers. So I'm you know marking them with another color, which is the complex number 1, the complex number 2, and the complex number 3. So this complex number is जो पहला बनाया वो है 1 plus 0i. 1 plus 0i मतलब वो सिर्फ मतलब 0 0 से स्टार्ट होकर कहाँ खत्म हो जाता है 1,0 पे, ठीक है? ये वाला खत्म होता है माइनस 1 by 2 minus root 3 by 2 पे, और ये वाला खत्म होता है ऊपर वाला minus 1 by 2 plus root 3 by 2 पे, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये. जब इन दोनों को ऐड करते हो ना, तो पहला वाले को ऐड किया 1 plus 0i प्लस दूसरे को ऐड किया तो minus 1 by 2 plus root 3 by 2i, तीसरे को ऐड किया तो आता है minus 1 by 2 plus minus root 3 by 2i. yes or no? ऐड किया करने पे क्या आएगा? 0 आएगा. आ रहा है? कैन यू सी 0? ये 1 minus 1 minus half 0 हो गया, और रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में root 3 by 2 आई और minus root 3 by 2 कैंसिल ईच अदर. ओके, समझ में आया ये? अब एक काम करते हैं, अब एक चीज और देखना. अगर मैं x square equal to 1 को सॉल्व करता हूं तो रूट क्या आता है? x equal to, फटाफट बोलो. Plus minus 1. प्लस माइनस 1. लेकिन अगर मैं x क्यूब इक्वल टू 1 को सॉल्व करता हूं तो इसको ऐसे सॉल्व करूंगा, x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिखूंगा, फिर लिखूंगा x माइनस 1 टाइम्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है? ये लिखूंगा. Yeah. पहले वाले को 0 करूंगा तो क्या आएगा? इसको 0 करूंगा तो क्या आएगा? X is equal to 1. x इक्वल टू 1. और अगर मैं दूसरे वाले को 0 करूंगा, इसको 0 करूंगा तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू, बोलो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. Minus b plus minus हाँ, root b square minus 4ac by 2a. तो कितना आएगा? -1 प्लस माइनस, हाँ बोलो. 1 minus 4. 1 minus 4 कितना होता है? बोलते जाओ. Root 3 आया. रूट 3 आएगा ना यहाँ पे, और नीचे 2 आएगा. यस और नो? Yeah. तो ये नंबर वही है, -1 by 2 प्लस आयोटा रूट 3 by 2. समझ में आ रहा है? Yeah. दूसरा नंबर क्या है? -1 by 2 माइनस आयोटा रूट 3 by 2. समझ में आया? तो जो ये इक्वेशन है, आप ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट. ये इक्वेशन क्या है? कैसी इक्वेशन है? Cubic. क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं? 3. एक रूट क्या है? 1. एक रूट क्या है? Minus half plus I root 3 by 2. एक रूट क्या है? Minus half minus I root 3 by 2. वेरी गुड. क्या इन तीनों को रूट को मैं ऐसे बोलता हूँ, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा है? Yeah. ठीक है. अब तुमको याद है x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 ऐसे लिखो.
तुमको याद है कि सम ऑफ रूट्स इज हाउ मच? माइनस b बाय a. या फॉर अ क्यूबिक इक्वेशन, पहले इतना कॉपी करो फटाफट। ठीक है। Now in a cubic equation, right? In a cubic equation, let's say it is ax cube plus bx square plus cx plus d has roots, has how many roots? 3. So let's call them alpha, beta, gamma. Okay. And what is alpha plus beta plus gamma? तो बोलते जा, विक्रम बोलेगा, बोलते जल्दी जल्दी। एक सेकंड। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ज्यादा कीक और शीश। ज्यादा बुझो ना। माइनस बी बाई ए, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is c by a and alpha beta gamma is minus d by a. ठीक है। So if you have the equation x cube minus 1 is equal to 0, you can, इसमें a का वैल्यू कितना है 1 है, b का वैल्यू कितना है 0 है, c का वैल्यू कितना है 0 है और d का वैल्यू -1 है। ठीक है। ओके हेलो, ए समझ में आ रहा है क्या? हाँ ठीक। तो अल्फा, इसके रूट्स का एक सम क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 0 होगा ना? 0 होना चाहिए कि नहीं? देख लो, -0/1, राइट? ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पीछे इनका जो रूट्स थे निकाले अभी, जो रूट्स, इनका सम है भी 0। ओके। और इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? व्हाट इज प्रोडक्ट? अल्फा बीटा गामा कितना होना चाहिए? प्रोडक्ट इज माइनस ऑफ -1, माइनस ऑफ -1/1 विच इज +1। ओके ओके, कूल कूल एवरीवन। ठीक है। सची लिखते रहे, समझना, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। मैथ्स में वही होता है, पहली बार में हो सकता है समझ में नहीं आए, दोबारा जब नोट्स पढ़ोगे तो समझ में आएगा। फिजिक्स में ऐसा नहीं होता, पहली बार में आना चाहिए, पहली बार में नहीं आया तो दूसरी बार में नहीं आएगा पक्का। लेकिन मैथ्स में सब हो सकता है पहली बार में 70% आए, कुछ कुछ स्किप हो जाए, बाद में लेक्चर के बाद देखो नोट्स, ओ ये कैसे हुआ, तब तो और समझ में आएगा। ओके, इसलिए लिखते रहो पूरा मैथ्स में। अंडरस्टूड? इसको, इन रूट्स को स्पेशल बोलते हैं, कुछ नाम है इनके। वो नाम ये है कि इस वाले को बोलते हैं 1 ही बोलेंगे, इस वाले को बोलते हैं ओमेगा और इसको बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। तुम चाहे तो ये दूसरे वाले ओमेगा वाले को स्क्वायर करके देखो, आता है क्या? ये स्क्वायर करके देखो उसको, you square this, you see that you will get this. You square -1/2 plus iota root 3 by 2, you see that you will get -1/2 minus iota root 3 by 2। ठीक है, जल्दी स्क्वायर करो। In complex it was 1 e raised to I 0, was 1 e raised to I 2 pi by 3, and this was 1 into e raised to I minus 2 pi by 3। आ रहा है?
आ रहा है ना। दूसरी बात इंपॉर्टेंट कि ओमेगा जरूरी नहीं इसको बोले और ओमेगा स्क्वायर इसको बोले, उल्टा भी हो सकता है। मतलब इन दोनों में किसी की आइडेंटिटी है नहीं कि कौन सा ओमेगा है कौन सा ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। तो किसी को भी ओमेगा बोल सकते हैं, किसी को भी ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हैं, कोई मतलब यू नो यू आर फ्री टू चूज, ठीक है। और ऐसा भी है कि इसको करोगे ना नीचे वाले को स्क्वायर तो ऊपर वाला आ जाएगा। अभी तुमने ऊपर वाले को स्क्वायर किया नीचे वाला आया ना, तो ऐसा भी होगा कि नीचे वाले को स्क्वायर करने से ऊपर वाला आ जाएगा। वो भी करके देख लो। समझ में आया? हम्म। अब इससे क्या होता है, ऐसे अगर यूलर फॉर्म में लिखा हुआ है ना चीज, तो कुछ कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एकदम वेक्टर का एडिशन पता है ना क्या होता है? सुनो सुनो पहले, तो इसको करने से पहले ये सुनो। अगर मैं बोलूं ये वेक्टर ऐड करना है, तो पता है ना ये ऐसे होगा आंसर, ये सुनो। ठीक। तो या फिर मैं बोलूं तुमसे ऐसा वेक्टर और ऐसा वेक्टर ऐड करना है, तो ऐसा आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना? ठीक। तो क्या होता है कि जैसे सपोज ऐसे लिखा है कि z1 इज इक्वल टू r1 e रेस टू आई थीटा 1, ठीक है। और z2 लिखा है क्या, r2 e रेस टू आई थीटा 2। तो z1 प्लस z2 में तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज मतलब इसमें यूज नहीं होता यूलर फॉर्म। और z1 माइनस z2 में भी नहीं होता, बट z1 इंटू z2 में बहुत यूज होता है। क्यों? क्योंकि तब क्या होगा, व्हाट विल हैपन कि बेटा r1 r2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे अलग से, तो इसका आंसर होगा r1 r2। और जो e रेस टू आई थीटा है वो होगा e रेस टू आई थीटा 1 प्लस थीटा 2, क्योंकि पावर्स ऐसे ही होते हैं ना, पावर्स मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। यस और नो? आर यू गेटिंग दिस? तो फॉर एग्जाम्पल इसका एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुमको ऐड करना है, तुमको मल्टीप्लाई करना है क्वेश्चन नंबर, और z1 बाई z2 क्या होगा, z1 बाई z2 लिख लो पहले, इज r1 बाई r2 e रेस टू आई थीटा 1 माइनस थीटा 2। ओके, ये समझ में आ गया? यूलर फॉर्म तभी यूज करना है जब इजी हो रिप्रेजेंटेशन में उस कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे पूछूं कि 2 प्लस 2i, मान लो फाइंड, लिखो फाइंड क्वेश्चंस, और 2 प्लस 2i डिवाइडेड बाई लेट्स से आई वांट टू डू 2 माइनस 2i, ठीक। जब ये क्वेश्चन करते थे तो कैसे करते थे, तो आप कैसे करते थे, तो आप इसको 2 प्लस 2i से मल्टीप्लाई करते ऊपर नीचे, यस और नो। लेकिन अभी क्या करेंगे, अभी हम करेंगे ऊपर वाले का हम लिखेंगे ऑयलर फॉर्म, तो आएगा 2 रूट 2 ई रेस टू आई 5/4, यस और नो? समझ में आ रहा है? और नीचे वाले लिखेंगे तो आएगा 2 रूट 2 ई रेस टू आई माइनस 5/4, है कि नहीं? जब डिवाइड होगा तो 2 रूट 2 गया, ई रेस टू क्या होगा, ई रेस टू आई π/4 और माइनस माइनस π/4, सो प्लस π/4, यस और नो? तो आंसर आएगा ई रेस टू आई π/2, और ई रेस टू π/2 कितना होता है, बस आई होता है। इसका आंसर सिर्फ आई है। ओके गाइस, समझ में आया? हाँ? वैसे ही अगर मुझे करना हो 2 प्लस 2i इंटू 2 माइनस 2i, तब क्या होगा, तब होगा 2 रूट 2 ई रेस टू आई π/4 इंटू 2 रूट 2 ई रेस टू आई माइनस π/4। ओके, अब देखो क्या क्या करना है अपने को, 2 रूट 2 हो जाएगा 8 इंटू π/4 प्लस माइनस 0, ई रेस टू आई 0, दैट मीन्स इट इज जस्ट 8, द आंसर इज 8। कूल। हम्म। I didn't understand the last part. जोर से बोलो। I didn't understand the last part, how you just got 8. देखो कौन सा क्वेश्चन नंबर 1 और 2? 2, 2. 2 में इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, इसका यूलर फॉर्म ये है, ये समझ में आता है? हाँ. इसका यूलर फॉर्म ये है। अब इसमें ये नंबर है दोनों के सामने, राइट, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे सीधे सीधे, हाँ. आ गया 8। Yeah. ई रेस टू पावर है दोनों की, ये पावर दोनों की देखो क्या है, आई π/4 और माइनस आई π/4, क्या ऐड होंगी ना दोनों पावर ई के ऊपर। हाँ. Oh, so it'll be ई के ऊपर क्या आएगा, π/4 और प्लस माइनस π/4, ये सर नो? हाँ. हो गया दोनों, ई रेस टू आई 0 हो गया, हाँ. ई रेस टू आई 0 कितना 8 1, ओके।
Wait, understood? Yeah. ओके, और एक और करते हैं, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन बना के देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन नंबर है, इसका है, हाँ, इसमें क्या है कि ना, पावर लगाना बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आर की पावर ई आई थीटा पे अगर तुमको कुछ पावर लगाना है, एन लगाना है, ठीक, तो इसमें आर की पावर ऑन हो जाएगी और ई की पावर आई एन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे अगर थीटा 30 डिग्री है और तुमने पावर 4 लगा दी, तो एंगल अब कितना हो जाएगा, बोलो। देखो पहले थीटा था ई रेस टू आई थीटा और उसके पावर एन लगा दिया। ठीक है, इधर देखो ध्यान से, आर ई पावर आई थीटा है, उस पर पावर एन लगा दिया। तो जो पावर कैसे प्ले करता है, पावर प्ले करता है कि आर की पावर एन और ई की पावर क्या होगा, आई एन थीटा, मतलब पावर नहीं लगेगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो अगर ये थीटा 30 डिग्री है और एन 4 है, तो यहां पे एंगल कितना आएगा, बोलो बच्चों, बोलो। सो थीटा क्या है? 30 डिग्री, तो एन एन 4 है, थीटा हो तो 120। 120 हो जाएगा। और आर की पावर एन तो नंबर है, वो तो नंबर मल्टीप्लाई कर लो। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। लेट्स से आई वांट, ये लिख लिया है, ये लिख लिया, फटाफट लिख लो, उसको कंप्लीट करो। बच्चों, हो गया इतना? अब मान लो कि ना तुम्हें, ये क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन 4 है। लेट्स से 1 प्लस आई का पावर 4 निकालना है, ठीक, 4। अब इसको ऐसे नहीं करोगे 1 प्लस आई का स्क्वायर करो फिर स्क्वायर करो, ऐसे नहीं करते, ठीक। तो कैसे करते हैं इसको, अंदर वाले नंबर का वो बताओ, यूलर फॉर्म बताओ क्या है। 1 प्लस आयोटा का यूलर फॉर्म क्या है? √2 e to the power I 44 pi by 4। वेरी गुड। अब इसका जब पावर 4 करोगे तो क्या होगा, ये √2 का पावर 4 कितना होगा? 4 वेरी गुड। और ई रेस्ट पावर 4 क्या बनेगा? e raised to I into 4 into pi by 4 which is pi। ई रेस्ट, और ई रेस्ट आई पाई क्या होता है? I. ई रेस्ट पाई निकालना है ना, तो पीछे मत देखो, ऐसे देखो। ई रेस्ट पाई मतलब कितना, कहाँ पे एंगल कितना है 1 क्या? 1 or तो कहाँ पहुंच गए? minus x axis हाँ, तो और इस खाली इस बॉक्स का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 1। तो मतलब ये नंबर क्या है, ये -1 है, 1 कुछ नहीं है। -1 okay तो आंसर कितना है? दैट्स इट, minus 4। ओके, अच्छा ये बताना कि ई रेस टू आई 0 कितना है, कितना होगा? एंगल कितना है, 0, तो 0 तो 1, यस और नो? ई रेस टू आई पाई बाई 2 कितना होगा? I आई, वेरी 1 गुड। I ई रेस टू आई पाई कितना होगा? -1 वेरी गुड। ई -1. आई माइनस पाई बाई 2 कितना होगा? minus माइनस I आई। सोचना, ई रेस टू आई मान लो किसी ने लिख दिया 4 पाई, ये कितना होगा? minus 4 पाई मतलब क्या होता है? plus 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, कहाँ पे आए? same तो कहाँ, आंसर कितना है? 1 वेरी गुड। ई रेस टू आई 5 पाई कितना होगा? -1 वेरी गुड, समझ में आ रहा है?
वैसे ही देखो, तो मतलब तुमने 1 यूनिट के सर्कल पे घूम रहे हो अगर ई रेस टू आई करते हो। समझ में आया कि नहीं आया? या अब बताना ई रेस टू आई, लेट्स से इफ आई आस्क 5/4, ये कितना है? 1 यूनिट के सर्कल पे घूम रहे हो और कहां पे पहुंचोगे? तुम यहां पहुंचोगे ना। या तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? ये देखो, ये डिस्टेंस 1 है, या एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? 1 नहीं, 1 cos 45। अरे ये डिस्टेंस 1 है ना या जी, 1। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा इस पॉइंट का? ये होगा 1/√2 प्लस i/√2, ये होगा 1/√2 प्लस 1/√2 i। सोचो थोड़ी देर। मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, 45 डिग्री का वेक्टर होना चाहिए, तो एंड पॉइंट कितना होगा? So, but we'll do Pythagoras on this, right? So, won't it become 1/2 plus 1 plus I squared by 2? क्या फिर से बोलना? Oh, sorry. Got it. Sorry. ई रेस टू आई, हेलो, ये समझ में आया अभी? लिख लिया है ये सब कि नहीं? लिख लिया? तो किसमें यूलर यूज होता है? या तो पावर चढ़ाने में, या मल्टीप्लिकेशन में, या डिवीजन में। ठीक है। और अगर मैं तुमसे अगर पूछता हूँ 5, क्वेश्चन नंबर 5, मान लो तुमको लिखा 1 + √3i और उसका पावर 5, अब जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है? विक्रमादित्य, इसका आर बता कितना है, मतलब यूलर फॉर्म क्या है? R ये R4 है E एक ई, सेकंड यू, हाँ? जस्ट R4 है ना डिस्गस्टिंग, एक सेकंड एब्सोल्यूट इनसबऑर्डिनेट। नहीं बस अंदर 1 + 3 ना सॉरी R2 होगा 4 हाँ, नहीं 2 तो 2E I raised to the power sorry 2E raised to the power I ये एक सेकंड ये 5/6 होगा क्या कितना एंगल है डिग्री में बोल दे? 30 30 नहीं है, वाई सॉरी 60 वाई होएगा ना वाई कोऑर्डिनेट √3 है ना, हाँ तो 60 होएगा तो π/3। 5/3 इसका पावर 5 अगर कर दिया तो 2 का पावर 5 विच इज 32 बाहर आएगा। 32 अंदर आएगा E e रेस टू आई हाँ 5 π/3, ये सुनो। हाँ 5 π/3 डिग्री में कितना होता है? 5/3 डिग्री में 300 300 होता है ना। 300 कहाँ आएगा? 300 आएगा 360, ये होता है 360, 60 पहले ना, हाँ तो ये आएगा 300। इसका मतलब इसका एंगल एक्चुअली में जो कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका एंगल कितना है? हमने बताया था इसका मतलब आर्ग्यूमेंट कितना है इसका? -5/3 वेरी गुड, वेरी गुड। 32 e रेस टू आई -i π/3, ठीक। और -i π/3 एक्चुअली होता कितना है वो अभी तो हमने किया था, मैं तुमको मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ। जो ये अंदर की चीज है ना, ये होती है 1/2 + ½ - i/√3/2।
ये होगी, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो आएगा, पहले इतना लिखो फटाफट। e raised to I minus pi by 3 is a unit vector which is 1 in magnitude, and the it is 1 by 2 plus I minus iota root 3 by 2. Okay, if you think in head you will get why it is so. Okay, just try to map it on the scale, the graph. Fine. And therefore the answer will be 32, और फिर ब्रैकेट में अंदर है 1 by 2 minus iota root 3 by 2. Okay, so it is 16 minus 16 iota root 3 हो गया। ठीक, ये आंसर है। देखो तुमको पावर 5 करना पड़ा विदाउट, एकदम तुरंत हो गया ना, ये आंसर है। ओके, समझ में आया? ओके, ये बताओ बेटा साची, तुमको ये समझ में आया कि इसको ये क्यों लिखा है? Pi by 3. इसको ये क्यों लिखा है, समझ में आया? No. I don't know. I understood how you find R. I didn't understand theta. अच्छा, ये फिर सोहम ना नेक्स्ट क्लास में आके पढ़ाएगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये वाला पार्ट, ऑयलर। ये तो इतनी बार किया मैंने आज। I don't know. I'm getting confused. ठीक, और एक चीज और सुनो, जब तुम पावर कर रहे होते हो ना, तब एक्चुअली क्या कर रहे हो, तो देखो सपोज एक वेक्टर है, और सपोज वेक्टर है 1 प्लस आई, ठीक। 1 प्लस आई को लिखा है रूट टू ई रेस टू आई पाई बाई 4, ये सुनो, रूट टू ई रेस टू आई पाई बाई 4। जब 1 प्लस आई स्क्वायर करते हो, 1 प्लस आई का स्क्वायर करते हो, तो वो हो जाता है 2 ई रेस टू आई पाई बाई 2। सही है ना? रूट टू ई रेस टू आई बाई 1 प्लस आई यहाँ था, 1 प्लस आई ये है, राइट, ये सुनो। बाय द वे 2 ई रेस टू आई पाई बाई 2 होता है, ई रेस टू आई होता है ये, ठीक है, आंसर 2 आई है। तो ध्यान से देखना, तुम क्या कर रहे हो, इसका मैग्नीट्यूड था रूट टू, उसको जब तुमने स्क्वायर किया और एंगल था 45 डिग्री, जब स्क्वायर किया तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया 2, ठीक है, मैग्नीट्यूड हो गया 2 और एंगल हो गया 90। समझ में? तो बेसिकली स्क्वायर करने से वेक्टर का लेंथ को तुम स्क्वायर कर रहे हो, राइट, बट एंगल को डबल कर रहे हो। ओके, सो लिख लो, स्क्वायरिंग मींस, squaring a complex number means squaring r but doubling theta. Okay, doubling theta। इसी वजह से जब तुम इसको रिप्रेजेंटेशन बनाओगे तो उसका क्यूब कितना होगा, 1 प्लस आई का होल क्यूब। तुमको क्या करना है, क्यूब मतलब लेंथ को, लेंथ अभी क्या हो जाएगी बोलो, रूट टू का क्यूब इज 2 रूट टू, और एंगल कितना हो जाएगा 135। अंडरस्टूड? 3 times, yeah, okay. 3 टाइम्स, तो ये ऐसे बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, उसके बाद वाला क्या बनेगा, 1 प्लस आई की पावर 4, उसमें लेंथ हो जाएगी 2, हाँ नहीं 2 रूट 2 तो 4 हो जाएगी लेंथ, लेकिन जो एंगल बनेगा वो ये, तो ये यहाँ पे ये -4 आंसर आएगा इसका, 1 प्लस आई की पावर 4 आएगा ये। समझ में आ रहा है? ऐसे पावर करते जाओगे तो पैटर्न बनता जाएगा, स्पाइरल काइंड ऑफ थिंग। ओके, अंडरस्टूड? ठीक है, ओके, फाइन। अभी क्या करना है कि I will just check if you have complex number. Complex number is page 150. Okay.
5b is there. 5b we have done, I think, right? Yes or no? Jaldi No, bolo. sir, 5A. 5a we have done. Okay. 5b, after that there is 5c. Polar representation. Okay. 5d we did, right? 5d we did, no? Polar representation. Okay. Okay. You have to do now 5. I'll just check. 5c करना है और 5c में क्या करना है? Conjugate. 5c नहीं, 5c not 5c. हर्षल बहुत जल्दी आए हो तुम क्लास में. रिकॉर्डिंग